Good afternoon. In the last previous lectures, we covered the Fourier transform and we started the Laplace transform. So let us first see what is the requirement of Laplace transform, what are the advantages of the Laplace transform. So first see that we could calculate the Fourier transform of these signals. So Fourier transform of this was a plus j omega and this was a minus j omega. If you see this particular signal, so this is this signal and to the power at u minus t is this one. So if you see as t tends to infinite, after 0 its value is 0. As u tends to t tends to infinite, it is getting 0. It is decreasing. It means area under this curve can be calculated. If area under the curve can be calculated, then we can call the signal as bounded signal. Similarly here, before 0, the signal is 0, and as t tends to infinite, signal is getting converged. So area under the curve can be calculated. It means signal is bounded. And when signal is bounded, it is eligible for Bibo stability. So we can call these signal as stable signals because the area under the curve can be calculated. As t tends to infinite, the signal is bounded. So for such type of signals, Fourier transform can be evaluated. But what about the signals which are not Fourier transformable? Suppose this signal. So this signal, Fourier transform of this signal cannot be calculated since the curve of this signal is like this, to the power at ut. So these are unstable signals. So when we talk about the unstable signals where area under the curve is infinite, as t tends to infinite, the signal goes to infinite. So in such type of signals, Fourier transform cannot be calculated, and we can write a note if a signal is Fourier transformable, it means it is stable. For a stable signal, what was the condition? Minus infinity to infinitive ft dt should be less than infinite. This was the condition. So when a signal is Fourier transformable, then this condition is automatically satisfied. So whatever the Fourier transforms we evaluated directly, those all signals were stable signals. But what about unstable signals like this? So for these signals, we cannot convert such signals into the frequency domain with the help of Fourier transform.
and if these are aperiodic signals, so what we need to do, we need to multiply such signals with any negative exponential. To make a signal stable, what we need to do? We need to multiply it with any negative exponential, and by doing this, we could write e to the power at e to the power minus sigma t ut. So when we calculate the Fourier transform, e to the power at e to the power minus sigma t e to the power minus j omega t ut dt, minus infinity to infinity. So it becomes minus infinity to infinity e to the power at ut e to the power minus sigma plus j omega t dt. Let us assume sigma plus j omega is equals to s. Sigma plus j omega is equals to s. So minus infinity to infinity e to the power at ut e to the power minus st dt. So this is ft. So we can write minus infinity to infinity e to the power at ut e to the power minus st dt is equals to fs, where fs is Laplace transform of ft e to the power minus st dt. This is called Laplace transform. Now see, s is equals to sigma plus j omega. If I write real of s, it is equals to sigma. Real of s, real part of s is sigma. So we also consider minus sigma t. We multiplied with minus sigma t. So mean to say is, if we want to calculate the Fourier transform, Laplace transform of this, what it will be? 0 to infinity e to the power minus s minus a t dt is equals to 1 upon s minus a e to the power minus s minus a into t, it is 0 to infinity. So it will be 1 upon s minus a. So if we put like this, e to the power minus s minus s की जगह पुट कर दो यहाँ पर सिग्मा प्लस जे ओमेगा माइनस ए इंटू टी. सो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये सिग्मा पर डिपेंड कर रही है, ये सिग्मा पर डिपेंड कर रही है. तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिला एफ एस, एफ एस will only be defined for particular range
ऑफ सिग्मा, कुछ वैल्यूज होंगी सिग्मा की जहां पर एफ एस डिफाइंड होगा। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे थे, बट इस तरीके के अनस्टेबल सिग्नल को हम कंडीशनली स्टेबल बता सकते हैं। हम एक बता सकते हैं कि इस तरीके के सिग्नल्स में सिग्मा इंक्लूड करके कि हाँ ये एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो चला गया, बट ये कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ही, कुछ कुछ रेंज पर ही डिफाइन होगा। वो रेंज किससे डिफाइन होंगी? सिग्मा से। तो सिग्मा की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फोरियर इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। अभी मैं आगे आपको ये चीजें और क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, सो यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, रीजन। किस रीजन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है? तो इसमें लिख लेते हैं, फॉर all values of sigma at which fs is less than infinite is called convergence. And particular range or region is called region of convergence, ROC, for Laplace transform. तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म थी हमारे पास, जो माइनस सिग्मा टी, जो माइनस जी ओमेगा टी, minus infinity to infinitive, and dt, it should be less than infinite. So this is the Fourier transform. अगर हम चाहते हैं सिग्नल स्टेबल हो तो particularly this thing should be less than infinite. ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो एक पर्टिकुलर सिग्नल है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर सिग्नल जो है ये स्टेबल बन जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेटिस्फाइड लेस देन इनफाइनाइट, you will see that it will be depending upon the sigma, and from that sigma only we will get the region of convergence. Region of convergence, the values of sigma, so ROC is nothing but the values at which Laplace transform of the function is defined or signal is defined. इसमें लिख लो और same as Fourier transform, but multiplied by delayed exponential e to the power minus sigma t, where sigma has some specific values. वो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थोड़ा क्लियर होगा उससे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut. So we can calculate the Laplace transform of ut like ut
e to the power minus s t सर dt। स्क्रीन सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन तो दिख रही है यार यहाँ पे मेरे, स्क्रीन तो विजिबल ओके है। सर अब बोल। ओके सर। Minus infinity to infinity ut e to the power minus st dt, so we can write it e to the power infinity 0 to infinity, ये 1 हो गया, e to the power minus st dt, so it will be 1 by s, 1 by s. What was the s? Sigma plus j omega, means Laplace transform is depending upon sigma. Earlier अगर हम ut का निकाल रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये 1 बाई जे ओमेगा की टर्म में आ रहा था, पाई प्लस डेल ओमेगा समथिंग करके जे ओमेगा की टर्म में आ रहा था, सिग्मा जैसी कोई चीज नहीं थी। अब इसमें एक टर्म ऐड हो रही है सिग्मा, इट मींस दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिपेंडिंग अपॉन द सिग्मा। लेट अस सी व्हाट इज दिस। सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। अगर जे ओमेगा को मैं थोड़ी देर के लिए बाईपास कर दूं तो यहां पर मुझे मिलेगा सिग्मा टी ई टू द पावर और 0 टू इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन रही होगी। अब यहां पे देखो, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, इसमें इट मीन सिग्मा पॉजिटिव है, तो यहां पर 0 वैल्यू रखोगे तो ये 1 1 हो जाएगा, e टू द पावर 0 इज 1। अगर ये पॉजिटिव है और t अगर इनफाइनाइट रखोगे तो ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, और आपको एफ एस जो मिलेगा वो लेस देन इंफिनिटी मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे इस केस में मिल रहा था 1 बाई एस। इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन लेस देन 0, if sigma is less than 0, it means it is negative, negative negative positive, e to the power 0 is 1, but e to the power infinite is infinite, so fs would be infinite. So अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut यूनिट स्टेप सिग्नल इज 1 by s only and only if सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। अब पूरा आंसर ये हो गया। अब देखो पहले क्या था, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हमने किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, बट देयर वाज नो कंडीशन, इट वाज अनकंडीशनल। बट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन, we can calculate the Laplace transform of unstable signal also by making them conditionally stable. For sigma greater than 0, this signal is, for sigma greater than 0, this signal is Laplace transformable. For sigma less than 0, this signal is not realizable. समझ रहे हो? तो Laplace transform of this signal does not exist if sigma is less than 0। तो Laplace transform में एक डिसएडवांटेज ये निकल के आया कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो कंडीशनली आउटपुट होगा, हमें उसमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ROC। सो दिस इज कॉल्ड ROC। तो जब हम सिग्मा प्लस जे ओमेगा कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी उल्टा हो गया, ये जे ओमेगा होता है और ये होता है सिग्मा। सिग्मा और जे ओमेगा कुछ इस तरीके से होता है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे होगा, सिग्मा पॉजिटिव के लिए तो जो भी एरिया 0 से राइट साइड में है, सो हम इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव आएगा या ये लेस देन इनफाइनाइट आएगा, एग्जिस्ट करेगा। बट सिग्मा लेस देन 0 के लिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होगा, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ROC।
ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड एस प्लेन कर्व or ROC for Laplace transform. This particular graph is called S-plane curve. In defining Laplace transform, only sigma is concerned, j omega is not concerned. हमें j ओमेगा पे ध्यान नहीं देना, हमें किस पे ध्यान देना है? सिग्मा पे ध्यान देना है. सिग्मा ही डिफाइन करेगा कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. तो इसको मैं थोड़ा याद रखने के लिए, यूटी का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? ये था. राइट साइड, राइट हैंड साइड. ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस यू माइनस टी, सो माइनस टी क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू जीरो e to the power minus s t dt, और यहाँ माइनस है, it will also be 1 by s. It will also be 1 by s, but for this particular thing ये क्या हो जाएगा? e to the minus sigma t. अब यहाँ पे देखोगे माइनस इंफिनिटी टू जीरो, सो e to the power 0 इज, ये वाली वैल्यू 1 हो गई. अगर आप माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो माइनस माइनस प्लस, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, और आप यहाँ माइनस इनफाइनाइट रखते हो तो माइनस माइनस प्लस, ये पूरा पूरा सिग्नल कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पे. तो फॉर सिग्मा ग्रेटर देन 0 एफ एस इज इनफाइनाइट. फॉर सिग्मा लेस देन 0, अगर सिग्मा निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस इसने पहले ही कर दिया, और माइनस इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज फाइनाइट वैल्यू, इट इज 0. सो इन दैट केस fs is 1 by s. So if we draw the ROC for this particular signal, it is defined for sigma less than 0. Sigma less than 0 means left hand side, left hand side. Okay, so Laplace transform of ut is 1 by s. Laplace transform of minus u minus t is also 1 by s. But region of convergence of both the signals are totally different. One is right hand side, another one is left hand side. So even though Laplace transform of these two signals are same, but region of convergence are different. So we will say that Laplace transform of both the signals are different. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब ये आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं. देखो, ut कहां डिफाइन होता है? ग्रेटर देन 0. इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा वो भी सिग्मा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होगा. माइनस टी कहां डिफाइंड होता है? लेस देन 0 के लिए. तो जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो भी लेस देन 0 के लिए होगा.
But what about the Laplace transform of signal e to the power minus a tut? So if we calculate the Laplace transform of this minus at 0 to infinity minus st dt, it will be 1 upon s plus a. 1 upon s plus a. So Laplace transform. यहां पर देखो, यहां पे क्या होगा, इसको करने के लिए देखो, जो भी ये डिनोमिनेटर में होता है ना, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं जीरो. Zeros are called for which Laplace transform becomes zero or vanished. Poles are called for which Laplace transform becomes infinite. तो जो न्यूमरेटर वाले होंगे उनको हमेशा बोलेंगे जीरोस, जो डिनोमिनेटर वाले होंगे उनको बोलेंगे पोल्स. सो दिस इज द पोल एस प्लस ए. तो हम यहां जब कभी भी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, तो अभी हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है. स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं. तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे s प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो. अगर मैं इसका रियल पोर्शन लेता हूं तो आ जाएगा सिग्मा प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ए, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ए. तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है आर ओ सी is only defined is only defined for real of ls. रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट पे ध्यान देना है, जे ओमेगा पे ध्यान नहीं देना है. किस पे ध्यान देना है, सिग्मा पर ध्यान देना है. तो सिग्मा इज द ओनली रियल पार्ट, तो जे ओमेगा को हमने हटा दिया, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ए. अब देखो कितना इजी बन जाता है, ये हमारा सिग्मा था, ये जे ओमेगा था, माइनस ए कहीं यहां पर होगा. तो जब ut था तो ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म था 1/s. तो यहां पर भी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा था, जीरो डायरेक्ट. और यहां पे सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस ए. तो जब ये सिग्मा इज इक्वल्स टू जीरो था तब हम जीरो के राइट हैंड साइड में ले रहे थे. अब ये राइट हैंड साइड सिग्नल था e टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ये राइट हैंड साइड सिग्नल है, तो इसका आरओसी भी क्या होगा, राइट हैंड साइड. बट अब कहां पे लेंगे हम इसको, माइनस ए. सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ए को डिफाइन कर दो, इसके राइट हैंड साइड में लेंगे. फिर से देखो, ut जो था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s था, ये पोल है, पोल को जीरो करोगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो आ जाएगा. तो हम जब ut का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ले रहे थे तो वो कहां से ले रहे थे, फॉर सिग्मा ग्रेटर देन जीरो. अब ये कहां से लेंगे हम, फॉर सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए. ठीक है. सिमिलरली अगर आप e टू द पावर ए टी यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहें, e टू द पावर ए टी यू माइनस टी, तो क्या आएगा,
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या इसको माइनस इन्फिनिटी टू 0 e to the power at e to the power माइनस एस टी डी टी। इसको ले लो माइनस इन्फिनिटी टू 0 e to the power s माइनस ए टी डी टी, और ये आंसर आपको मिल जाएगा 1/s माइनस ए। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहीं से, सो s माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू ए। तो आरओसी डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा जे ओमेगा, ए यहां पर होगा कहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज, यानी कि आरओसी क्या होगी इसकी, सिग्मा इज लेस देन ए। दिस विल बी आर ओ सी। ठीक है, दिस इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन। e टू पावर माइनस एटी यूटी का देखो, e टू पावर माइनस एटी, e टू पावर माइनस एटी माइनस इंफिनिटी टू 0 e टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये हो जाएगा 1/s प्लस ए। सो s प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसको कैसे डिफाइन करोगे आरओसी इसकी, इसकी आरओसी ऐसे आ जाएगी, जे ओमेगा सिग्मा माइनस ए यहां पर है, तो ये आरओसी हो गई माइनस ए के लेफ्ट साइड। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर आपकी आरओसी, ये जो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन है, सिग्मा इस वाले एक्सिस पे चलोगे तो ये वाली लाइन सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन है, ये वाले लाइन जो है, अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आरओसी सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन को इंक्लूड कर रही है, अगर आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आरओसी सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन को इंक्लूड कर रही है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 होते क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा 0 हुआ तो s क्या हो गया, जे ओमेगा, तो सिग्मा की वैल्यू खत्म हो गई। तो आपका सिग्नल तब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेबल भी होगा और फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल भी होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में फर्क क्या है, सिग्मा का फर्क है। अगर आपने सिग्मा को 0 कर दिया तो वो सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल हो गया। अगर सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल हो गया तो यानी कि सिग्नल स्टेबल है। भाई कोई भी स्टेबल सिग्नल कब स्टेबल होगा, अगर उसको आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको आज की क्लास में सबसे पहले बताया। कोई भी सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल अगर है, इट मींस इट इज स्टेबल, इट इज बाउंडेड। अब जो अनस्टेबल सिग्नल्स थे उनका भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिसएडवांटेज क्या थी कि वो सिर्फ स्टेबल सिग्नल्स के लिए कैलकुलेशन कर सकता है। अगर कोई स्टेबल सिग्नल है उसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एडवांटेज क्या है कि कोई भी सिग्नल हो, स्टेबल हो अनस्टेबल हो, उस सिग्नल को हम फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर सकते हैं, बट कंडीशनली। उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो सेटिस्फाई होंगी तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या है, अगर आपकी आरओसी में सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड हो रही है, जैसे इस वाली में ये आरओसी है, ये A2 लेस देन ए है, सिग्मा लेस देन ए, इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड हो रही है। सो दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज स्टेबल सिग्नल। ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या आएगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, 1/a माइनस जे ओमेगा। जिन सिग्नल्स में सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड नहीं होती
उन सिग्नल्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो सिग्नल स्टेबल सिग्नल नहीं है। जैसे कि जो ये वाला सिग्नल हमने लिया था, क्या था ये, 80 u सॉरी -80 u -t। तो ये सिग्नल अनस्टेबल सिग्नल है, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड नहीं करती। ठीक है, अब इसमें एक एक करके नोट्स लिखते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। Note 1, poles of Laplace transform of a signal is defined as the values of s at which fs becomes infinite। पहला पॉइंट, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से पोल्स हैं, कौन से जीरोस हैं। और सेकंड पॉइंट, फॉर estimation of stability, poles are always play very important role and are considered over zeros। अगर आपको स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है तो आप क्या किसके बारे में बात करेंगे, पोल्स के बारे में बात करेंगे, जीरोस के बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, if ROC of a Laplace transform includes sigma is equals to 0 line in S plane, then that signal is also Fourier transformable। अगर किसी भी सिग्नल की लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो और उसकी आरओसी में सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड होती है, इट मीन सिग्नल इज फॉरियर ट्रांसफॉर्मेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, in a LTI system, if the impulse response ht is to be stable, in that case ht must be Fourier transformable। और Laplace transform of ht must have ROC which includes sigma is equals to 0 line।
if ROC of Laplace transform of any signal includes sigma is equals to 0 line, in that case S can directly be replaced by j omega. S is equals to sigma plus j omega. Sigma is equals to 0. So S can directly be replaced by j omega. ठीक है, next ROC of a right hand side signal or causal signal will always be right hand sided. किसी भी causal signal की जो ROC होगी वो right hand sided ही होगी. ROC of a non-causal signal will always be left hand sided. For a system to be stable and causal, अगर कोई सिस्टम स्टेबल होना चाह रहा है और साथ साथ में causal होना चाह रहा है, it means ROC of its Laplace transform must be right sided and must include sigma is equals to 0 line. दोनों बातें एक साथ आ गई कि अगर स्टेबल है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 लाइन इंक्लूड करेगा, अगर कॉजल है तो राइट साइड होगा. ठीक है, अब देखते हैं find the ROC of e to the power minus 2t ut plus e to the minus 5t ut. ये माइनस का प्लस कर दो. So Laplace transform of e to the power 2t ut will be 1 upon s minus 2 और Laplace transform of 5t ut will be s minus 5. So इसके लिए क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 2 और इसके लिए क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 5. अगर इसको प्लॉट करते हैं so this is sigma is equals to minus 2 plane, this is sigma is equals to minus 5 plane, sigma is equals to 0.
एफ सॉरी ये जे ओमेगा होगा, ये सिग्मा होगा। तो अब देखो सिग्मा ग्रेटर देन 2 के लिए ये आर ओ सी हुई, सिग्मा ग्रेटर देन सॉरी 5 +5, सिग्मा ग्रेटर देन +5 के लिए वो ये आर ओ सी हुई। सो ओवरऑल आर ओ सी विल बी overall ROC will be common or intersection of both, दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, when sigma is greater than 5, so this will be the answer। ये क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन 2 वाली लाइन है, तो ROC सिग्मा ग्रेटर देन 2, ROC सिग्मा ग्रेटर देन 5, ओवरऑल क्या होगा, ओवरलैपिंग कहां पर हो रही है, इसके बाद हो रही है, तो ओवरऑल ये आएगी। ठीक है, इसमें लिख लो नोट, देखो S इज इक्वल्स टू 2 एक पोल था, S-2 S-5 ऐसे था ना, तो दो पोल्स हैं, S इज इक्वल्स टू 5, ग्रेटर दिस ग्रेटर वन इज दिस पोल, तो इसमें लिखो पॉइंट, कौन सा पॉइंट चल रहा था, 9 है शायद, फॉर द राइट साइडेड सिग्नल that is the combination of two right side signal combined ROC will be right sided defined by greatest pole। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल आरओसी क्या होगी, राइट साइडेड होगी, और किससे डिफाइंड होगी, जो बड़े वाला पोल होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 में ग्रेटर 5 है, तो सिग्मा ग्रेटर देन 5 से डिफाइंड हो गई। सिमिलरली अगर आरओसी इस तरीके की हो कि दो पोल्स हो, -5 -2, अगर इस तरीके की हो तो ओवरलैपिंग एरिया ये, तो सिग्मा लेस देन -2 सिग्मा लेस देन -5 ओवरऑल ये होगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फॉर लेफ्ट साइड सिग्नल साइडेड सिग्नल combined ROC will be left sided defined by smallest pole। सिग्मा इज इक्वल्स टू -2 और सिग्मा इज इक्वल्स टू -5 में स्मॉलेस्ट क्या है, -5। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।